Cell division is an important property of cells and living organism. Due to this property, a new organism is formed from the existing one. A multicellular organism grows up and an emaciated body can also be restored. Cell division offers a lot of function. So first we shall see the importance of cell division. As we know कि वो reproduction के अंदर help करता है, वो अलग अलग cells produce करने के लिए help करता है. It helps in the growth of an organism or a growth of a damaged tissue. Then it also helps in repair and replacement. So अक्सर हम लोग को ऐसा भी हो जाता है कि इसकी एक कट आ जाता है, वो कट के ऊपर थोड़े टाइम बाद नई स्किन आ जाती है, तो दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ सेल डिविजन. सेल डिविजन की वजह से कोई भी तरह का जख्म है वो भरने में हेल्प हो जाता है. सो इट इज़ अ एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ सेल डिविजन दैट इज़ नोन एज रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट. जहाँ पर ओल्ड सेल्स जब वूंड हो जाता है वो शेड ऑफ होके एक नई सेल का लेयर आ जाता है. At the same time replacement होता है. Replacement is where your old cells when they age and when they are broken down, when they die, so these cells are shed off and in the place of these cells हमें एक नया layer of cell दिखता है. That is also an important function of cell division. So kids, यहाँ पर बात हुई कि what are the important features and the function जहाँ पर हम लोगों को cell division काम आता है. Now we are going to see the two different types of how cell division occurs. So the two different types of cell division are as follows. The first one is mitosis and the second one is known as meiosis. Mitosis हमारे सोमैटिक सेल्स के अंदर होता है, यानी हमारे बॉडी सेल्स, हमारी जो नॉर्मल सेल्स है उनके अंदर माइटोसिस होता है. whereas meiosis हमारे सेक्स सेल्स या हमारे जर्म सेल्स के अंदर होता है. So this is a main difference between mitosis and meiosis. At the same time माइटोसिस के अंदर जो हमारा क्रोमोसोम नंबर वो एकदम सेम रहता है. इसका मतलब जैसा हमारा पेरेंट सेल रहेगा हमारा डॉटर सेल एग्जैक्टली सेम रहेगा. whereas in the case of meiosis जो सेल्स फॉर्म होती है वो पेरेंट सेल से अलग रहती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनका क्रोमोसोम नंबर एग्जैक्टली हाफ हो जाता है. दैट इज़ वाई दिस ओनली अकर्स इन द ovum or the egg of the ovary and the sperm of testes. So now we are going to begin with the first type of cell division, that is mitosis. As we know, mitosis is a type of cell division in which one parent cell divides into two identical daughter cell and the chromosome number is maintained. इसका मतलब अगर हमारे पास एक पेरेंट सेल है वो कट होकर दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी, एग्जैक्टली हाफ होकर दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी. माइटोसिस के अंदर कुछ स्टेजेस होते हैं जिसके व्हेन द सेल अंडरगोज दीज स्टेजेस इवेंचुअली द न्यूक्लियस इज डिवाइडेड एंड देन द साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड एंड सो द पेरेंट सेल फाइनली गेट्स डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट डॉटर सेल्स. हावेवर ये जो दोनों डॉटर सेल्स है ये दीज आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल बिकॉज द क्रोमोसोम नंबर इज़ द सेम. पेरेंट सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं. एट द सेम टाइम जो दोनों डॉटर सेल्स हैं उनके अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स ही रहते हैं. दैट इज़ वाई माइटोसिस इज़ नोन एज द इक्वेशनल सेल डिविजन, क्योंकि दोनों डॉटर सेल्स के अंदर इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. So further we are going to study the stages of mitosis, the different phases that are as follows in mitosis. So the two broad classification of phases of mitosis are karyokinesis and cytokinesis. यानी दो important phase जिसके अंदर mitosis divide हुआ है वो दो phase है karyokinesis and cytokinesis. Karyo का मतलब होता है nucleus, kinesis का मतलब होता है division. तो karyokinesis का मतलब है यहाँ पर nucleus divide होता है. cytokinesis का मतलब है यहाँ पर cytoplasm divide होता है. Now in karyokinesis we have following 4 phases more. अभी karyokinesis के अंदर और 4 phases हैं. So first we are going to study the 4 phases of karyokinesis followed by the cytokinesis. So presenting to you the first phase of karyokinesis in mitosis, that is prophase. In prophase the nuclear membrane and nucleolus disappears. सो जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के आसपास एक मेम्ब्रेन होता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा राउंड ऑर्गेनल होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोलस. सो हियर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस दिस स्टार्ट्स टू डिसअपियर.
यानी आहिस्ते आहिस्ते करके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना स्टार्ट होते हैं, वैनिश होना स्टार्ट हो जाते हैं. Next we have the centrioles. These are the organelles. These organelles, they are a cylindrical shape organelles. Now what happens, these they exist as a pair, and this pair it moves apart to two different poles. यानी opposite poles के अंदर centrioles move करते हैं. Centrioles कुछ नहीं लेकिन एक cylindrical तरह का एक छोटा सा organelle है. Then we have chromosomes which become short, distinct and clear. ना व्हाट हैपन कि जब डीएनए होता है तो उसके जो थिन स्ट्रैंड्स होते हैं तो वो न्यूक्लियस के अंदर ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही स्कैटर्ड पड़े होते हैं. देन दे आर नॉट विजिबल टू अस बिकॉज दे आर वेरी थिन. तो व्हाट हैपन इज, ये जो टाइनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दिस टाइनी स्ट्रैंड्स दे अंडरगो अ लॉट ऑफ रिकॉइलेशन. बहुत सारे कॉइलिंग होने लगते हैं, ये लोग एकदम गोल 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 राउंड होने लगते हैं. व्हेन दीज गेट coiled again and again, due to the recoiling they form the structure known as chromosomes. यानी जब DNA it undergoes a lot of coiling, it is called as chromosome. सो क्रोमोसोम कब फॉर्म होते हैं, ये प्रोफेज के अंदर फॉर्म होते हैं. तो यहाँ पर हम लोगों को डीएनए विजिबल होने लगता है. वाई? बिकॉज इट बिकम्स शॉर्ट, डिस्टिंक्ट एंड क्लियर. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक धागा होता है, एक पतला धागा आपको क्लियरली विजिबल नहीं है. इफ़ आई से कि आपको एक पतला धागा अगर मैं दूर से दिखाऊँ और पूछूँ कि उसका कलर क्या है, यू विल बी अनेबल टू टेल मी द कलर ऑफ द थ्रेड. However, if I coil it into a solid structure, if I coil it upon something and I show you the entire wool, or if I show you the entire sum of the thread, then you might be able to tell me the color of the thread. That is the same reason DNA is coiled up and it forms chromosome. These chromosomes, they become short, distinct and clear structures. Now the two parts of the chromosomes are known as sister chromatids. यानी दो अलग अलग strands जो क्रोमोसोम के होते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर भी आपको दिख रहे होंगे, इन्हें हम कहते हैं sister chromatids. They remain attached to the center. The center is known as the centromere. So as we have studied, I would like to revise it once again. कि in prophase the nuclear membrane and the nucleolus it disappears. The centrioles start moving on to different poles. The chromosomes, they become short, distinct and clear, and the sister chromatids, which are the two arms of the chromosome, they are attached to the center, and the center is known as the centromere. So here is also a diagrammatic representation to show the structure of chromosome as well as the different labelings of our chromosomes for you guys to better understand that how the chromosomes divide and how it works. Followed by we have metaphase, the second phase of कैरियोकाइनेसिस. सो एज वी हैव स्टडीड कि कैसे सेंट्रियोल्स जो सिलेंड्रिकल ऑर्गेनल्स है जो अलग अलग पोल्स की तरफ मूव करते हैं, नाउ दे रेडिएट आउट समथिंग विच इज़ नोन एज स्पिंडल फाइबर्स. ये स्पिंडल फाइबर्स जाते हैं और तुम्हारे क्रोमोसोम्स के सेंटर में यानी तुम्हारे सेंट्रोमियर पे जाके स्टिक हो जाते हैं. So the chromosomes they lie up in a equatorial plane which is known as the midline. तो यानी मिडिल में जाके सारे क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाते हैं, सारे क्रोमोसोम्स लाइन अप हो जाते हैं. और ये जो सारे स्पिंडल फाइबर्स है जो सेंट्रियोल से निकलता है, these स्पिंडल फाइबर्स दे गेट अटैच टू द सेंट्रोमियर्स ऑफ द क्रोमोसोम. और एज वी नो कि सेंट्रोमियर क्या है, सेंट्रोमियर वो स्ट्रक्चर है जो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को एक साथ चिपका के रखता है. तो दिस इज नोन एज सेंट्रोमियर. This was it for metaphase. We will revise this again. कि centrioles they move to opposite poles and they radiate out spindle fibers, whereas the chromosomes they get aligned in an equatorial plane, and the spindle fibers which are released they get attached to the centromeres of the chromosomes. Moving on to the next which is known as anaphase. यहाँ पर the spindle fibers which went and got attached to the centromere, these spindle fibers are pushed backwards again. Now when they are pulled back again, what happens is the centromeres that attach the two chromatids, it starts to divide. During this, the two sister chromatids of each chromosome they separate and are drawn apart towards the opposite poles. तो जैसा आप लोग देख सकते हो कि इस बैकग्राउंड में भी जैसा आप लोग देख सकते हो कि कैसे ये दो अलग अलग जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो इवेंचुअली खींच कर अलग हो जाती है. And what happens is
द स्पिंडल फाइबर्स दे स्टार्ट टू शॉर्टन। तो जैसे स्पिंडल फाइबर्स छोटे होते रहते हैं, ये सेंट्रियोल से खींचे जाते हैं, सेंट्रोमियर से खींचे जाते हैं, और सेंट्रोमियर से खींचकर अलग अलग जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो वापस अपने अपने दोनों डिफरेंट पोल्स की तरफ जाने लगते हैं। ड्यूरिंग लेट एनाफेज अ फरो स्टार्ट्स टू फॉर्म इन द सेल मेम्ब्रेन इन द मिडल ऑफ द सेल। Now what happens कि जैसे जैसे तुम्हारा एनाफेज आगे बढ़ता है, तुम्हें ऊपर की तरफ सेल के बीच के अंदर थोड़ा ऊपर की साइड तुम्हें दिखेगा एक छोटा सा फरो, एक छोटा सा डिविजन आने लगता है इन द मिडल ऑफ द एनिमल सेल। Whereas this is not seen in plant cell। प्लांट सेल के अंदर जब एनाफेज होता है तब भी ऐसा हम लोगों को डिविजन देखने नहीं मिलता है, तब हमें बीच में एक प्लेट फॉर्मेशन दिखने मिलता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, as we have studied in anaphase, the centromeres attaching the two chromatids they divide. The two sister chromatids of each chromosome they separate and are drawn apart towards the opposite poles. And during late anaphase, a furrow starts to form in the cell membrane of the cell. फर्दर वी विल बी सीइंग अबाउट द टीलोफेज। अभी आपने देखा कि कैसे एक फरो फॉर्मेशन हो रहा था और ये फरो फॉर्मेशन फाइनली डीपन होते जाता है। अब जैसे ये डीपन होते जाता है वैसे दो अलग अलग हमें न्यूक्लियस दिखने लग गए हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चेंजेस होते हैं। इसके अलावा चेंजेस क्या है? द स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर, टू सेट्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम रीच दी ऑपोजिट पोल्स। जैसा आप लोग देख सकते हैं कि दो अलग अलग सेट है क्रोमोसोम्स का, वो दूसरी जगह मूव हो जाता है और वो डीकंडेंस भी होकर, तो एक पर्पल कलर का जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है दैट इज बेसिकली द डीकंडेंसेशन ऑफ द क्रोमैटिड्स, या आप कह सकते हो डीकंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स। द स्पिंडल फाइबर्स जो आप देख सकते हो इट डिसअपियर्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस रीअपियर्स। So again the nuclear membrane and the nucleolus they are formed, they start to appear, and a cleavage of the furrow which is formed it gets to deepen। तो अभी जो पूरा डिविजन है वो पूरा एविडेंटली दिखने भी लग गया है। नेक्स्ट वी हैव साइटोकाइनेसिस। तो क्या है कि हमने ये सब पढ़ लिया, हम लोग ने कैरियोकाइनेसिस के चारों फेजेस पढ़ लिया, दैट इज़ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अगर हमें ये फेजेस को याद रखना है तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है दैट इज़ नोन एज पी मैट, या तुम कह सकते हो आई पीड ऑन माई मैट। तो ये छोटी सी ट्रिक से, एक छोटे से निमोनिक से तुम याद रख सकते हो कि माइटोसिस के अंदर कौन सा फेज पहले आता है, दैट इज़ PMAT। पी मैट से हमें याद रहेगा कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और अगर हमें इनका ऑर्डर याद रहेगा तो हमें पता भी रहेगा कि एक फेजेस के अंदर क्या हो रहा है। लास्ट हमारे पास आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इज समथिंग इन विच द क्लीवेज इट डीपन्स टोटली एंड द सेल डिवाइड्स एंड सेपरेट्स इनटू टू डॉटर सेल्स। एकदम क्लियर सी भाषा में कि जो सेल है उसके अंदर डिविजन हो रहा है और दो अलग अलग डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जा रही है। अब इसके अलावा हमारे पास मियोसिस है, जो अलग तरह का डिवीजन है, जो सिर्फ सेक्स सेल्स के अंदर देखा जाता है, जैसे कि तुम्हारा स्पर्म सेल हो गया या एग सेल हो गया। ये जो तरह का सेल डिवीजन है तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर इतना एलाबोरेटेड फॉर्म में नहीं दिया गया है किड्स। दैट इज़ द रीज़न हम इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़ेंगे, दैट इज़ जस्ट द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस विच कैन ऑल्सो बी वन ऑफ योर एग्जाम क्वेश्चंस। सो नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस ऑल द एग्जाम क्वेश्चंस। यानी एज वी ऑल नो कि हम लोग एक चैप्टर ख़त्म करने के बाद उसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी देख लेते हैं। तो एग्जाम क्वेश्चंस के अंदर हम इस चैप्टर के अंदर हमेशा ध्यान रखना और जो हमें याद रखना है दैट इज़ द 3 रिएक्शंस ऑफ aerobic reaction, then the table which is present in your textbook, so that's the table also that you have to focus more on। तो ये जो दोनों टेबल है जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर दिया गया है वो तुम्हारा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। अक्सर हमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर उस टेबल को हमें कंप्लीट करना होता है, तो उनकी क्रोनोलॉजी कंप्लीट करना होता है। तो एनर्जी प्रोडक्शन के वो दोनों टेबल्स को आपको ध्यान में रखना है। फिर आपको आएगा अमाइनो एसिड्स के फंक्शन, जो आप आराम से लिख सकते हो। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है तो आपको अमाइनो एसिड्स के फंक्शन के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट हमें आता है कि सेल डिवीजन, उसके अंदर माइटोसिस आएगा। माइटोसिस को आपको डिफ़ाइन करना आएगा, उसका कोई भी एक फेस आपसे पूछा जा सकता है, या फिर अगर आपको एक पिक्चर क्वेश्चन आ जाता है तो जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर आपको सारे इमेजेस अच्छे से देख कर जाना है, वो पिक्चर आ सकता है एंड देन दे विल आस्क यू टू गिव द नेक्स्ट पार्ट। वो इफ सपोज अगर उन्होंने प्रोफेस दे रखा है तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो इमेज है, जो प्रोसेस है उसके अंदर प्रोफेस हो रहा है, प्रोफेस के अंदर क्या होता है वो पूछ सकते हैं। देन प्रोफेस के बाद कौन सा फेज़ आ सकता है वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट फेज़ का वो लोग डायग्राम इलस्ट्रेशन मांग सकते हैं।
और इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस आ सकता है. So these are a few things that happens that you can be asked in your exam questions. Then you can also be asked the importance of cell division, कि why it happens, the difference between mitosis and meiosis. तो mitosis और meiosis के अंदर कुछ खास डिफरेंस है नहीं. कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस ऐसे है कि एक के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, whereas meiosis के अंदर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाता है. एक बॉडी सेल्स के अंदर देखा जाता है, दूसरा सेक्स सेल्स के अंदर देखा जाता है. एक के अंदर जो प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस है वो एक ही बार होता है, लेकिन दूसरे के अंदर ये प्रोसेस हमको 2 बार देखने को मिलता है. एट द सेम टाइम माइटोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, साइनाप्सिस करके कोई स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होता है, वेरएज ये सारी चीज़ें मियोसिस के अंदर देखी जा सकती है. सो दीज आर अ फ्यू डिफरेंस जो हमें माइटोसिस एंड मियोसिस के अंदर देखने मिलता है. एंड दिस इज ऑल्सो अ फ्यू एग्जाम क्वेश्चन दैट यू कैन गेट बेस्ड ऑन दिस चैप्टर. So all the very best kids, once you are completed with this chapter and you completed revising the video as well as writing all your notes and important points, you can always refer to the exam question and try solving the questions that I've stated above. So that's it kids. Thanks a lot for joining me today.